Hello students, in this video lecture I will discuss with you how to prepare financial statement of a banking company in a vertical format as per the Banking Regulation Act 1949. Every banking company must prepare its profit loss account and balance sheet as on 31st March every year as per the forms given in the third schedule of the Banking Regulation Act 1949. But before 1990, banks were required to close their accounts on 31st December every year. यहाँ पे देखो बिफोर 1990 बैंक were closing their books of accounts on 31st December, but after 1990 banks have started to close their books of account and started to prepare financial statement, that is balance sheet and profit loss account, from 31st March every year. And previously banks were not to show the provision for bad and doubtful debts and provision for taxation, as they are permitted to pass secret adjustments for these items by the Banking Regulation Act. And before 1990 means in the old format, जो भी प्रोविजन बैंक्स करते थे फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंड टैक्सेशन, वो डायरेक्टली डिडक्ट कर देते थे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट से। मतलब जो भी स्टेटमेंट्स पब्लिक को दिखाया जाता था, मतलब जो भी स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करते थे बैंक, उसमें समझ में नहीं आता था कि कितना प्रोवाइड किया है ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स एंड टैक्सेशन. But these forms of profit loss account and balance sheets are revised in the financial year 1991-1992, and now provision for bad and doubtful debts and provision for taxation are to be shown in the final accounts of the bank. And due to the new forms of account, there is a greater disclosure of information and better presentation of the accounts. अभी from 1991 1992 के बाद क्या करने लगे, जब फॉर्मेट रिवाइज हो गया ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो उसके अंदर अब दिखाया जाता है कि कितना प्रोवाइड किया है बैड डेब्ट्स के लिए एंड टैक्सेशन के लिए. और इसकी वजह से we can say there is a greater disclosure of information in the statements and better presentation of accounts. Now, in the new form, see, information is to be given in vertical form. Means the vertical format is there of balance sheet, profit loss account. Their information is provided. I mean to say the summary is provided there, and the details are given in the schedules. The details are given in the schedule, and there is no separate appropriation account. A part of the profit loss account will record all appropriation. मतलब जो प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट है उसी के अंदर एक एप्रोप्रिएशन का सेगमेंट है, वहाँ पे सारे से एप्रोप्रिएशन दिखाए जाएंगे प्रॉफिट्स के, कोई अलग से एप्रोप्रिएशन का अकाउंट नहीं बनेगा. There are no contra entries as they were for bills for collection and acceptance and endorsement in the old form. Now old form में contra entries थी with respect to bills for collection and acceptances and endorsements and other application, लेकिन new form में contra entries नहीं है. In the new form, bills for collection is shown as a separate item by way of footnote to the balance sheet, and acceptances, endorsements and other obligations are shown under the head contingent liabilities. पुराने वाले में अकाउंट थे इसके, अब नए वाले जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से इसके रजिस्टर बनाने पड़ते हैं और रजिस्टर के अंदर ही इसकी सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है. और जो बिल्स फॉर कलेक्शन है उसे दिखाया जाता है बैलेंस शीट के अंदर एज अ फुट एज अ फुट नोट में एट द बॉटम ऑफ अ बैलेंस शीट एज अ फुट नोट करके उसको दिखाया जाता है. और जो भी एक्सेप्टेंसेस एंडोर्समेंट है उसको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के अंदर दिखाया जाता है. Now, next is provision for bad and doubtful debts and provision for taxation were earlier shown in the old format as a deduction from interest and discount account. मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जो पुराना वाला फॉर्मेट था उसके अंदर जो भी प्रोविजन की जाती थी फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंड टैक्सेशन वो डायरेक्टली डिडक्ट कर देते थे फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट. But in the new format now, these adjustments are shown in the profit loss account under the head provisions and contingency. अब जो नया वाला फॉर्मेट है उसके अंडर एक जो उसका सेकंड पार्ट है एक्सपेंडिचर वाला, उसी के अंदर ये दिखाया जाता है प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसी, और उसी प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज में दिखाया जाता है कि कितना प्रोविजन किया है फॉर बैड डेट्स एंड कितना प्रोविजन किया है फॉर टैक्सेशन. नाउ इन द बैलेंस शीट, provision for taxation is shown under the head other liabilities and provision, and provision for bad debt is deducted from advances. जो भी एडवांस है, एडवांस मतलब जो भी बैंक लोन देती है कस्टमर्स को उसके, उसे एडवांसेस कहा जाता है. तो बैंक एडवांसेस देने के कौन से प्रकार काइंड्स है, वी कैन से हियर दैट लोन्स, लोन्स फॉर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ओवरड्राफ्ट, सीसी, बिल परचेस एंड डिस्काउंट, ये सारे एडवांसेस है. और इस एडवांसेस के एडवांसेस में से ये बैड डेट्स को डिडक्ट किया जाता है. Now, preparation of balance sheet. The balance sheet of the bank must be prepared as per Form A. जो सेक्शन 29 है और बैलेंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, वहाँ पे थर्ड शेड्यूल है, उस थर्ड शेड्यूल के अंदर फॉर्म ए दिया गया है, और वो फॉर्म ए जो है उसके हिसाब से हमें बैलेंस शीट बनानी है बैंकिंग कंपनी की. और ये जो नया फॉर्म है, इन द न्यू फॉर्म द समरी इज गिवन इन द बैलेंस शीट. मतलब फॉर्मेट के अंदर खाली समरी आएगी और जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है उस शेड्यूल के अंदर हमें दिखानी है. And let's discuss the balance sheet format and detail of
banking company. Now this is the form A. Form of a balance sheet. Balance sheet of, here we are supposed to enter the name of the bank. Then a balance sheet as on 31st March, whatever it is. Now you can see here, first capital and liabilities are mentioned. Next column is of schedules. Next column is for the figures of the current year, and final column is for the figure of the previous year. So see, schedule number 1 is a capital, schedule number 2 is a reserve and surplus, schedule number 3 is deposit, schedule number 4 is borrowing, and schedule number 5 is other liabilities and provision. इसका मतलब under the head capital and liabilities we have here 5 schedules, 1 to 5. 1 is capital, 2 is reserve and surplus, 3 is deposit, 4 is borrowing, and 5th is other liabilities and provision. Now in this column, in the third column, we are supposed to show the current year figures of these schedules, and in the final column we have to show only the previous year's figures of these schedules. Now, see, under assets, under the head of asset side, asset, we have here 5 schedules. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, 6 schedules we have here. Now, schedule number 6 is of cash and balances with Reserve Bank of India. Number 7 is balances with banks and money at call and short notice. Number 8 is investment. Number 9 is advances. Number 10 is fixed asset. Number 11 is other asset. Now, here the total of first 5 schedule will be of capital and liabilities, and next total of 6 schedules, that is from 6 to 11, will be the total of assets. Now here schedule number 12 is contingent liabilities, and bills for collection is shown as a footnote to the balance sheet. Bills for collection is not the contingent liability. Let me tell you one more time, it is not the contingent liability, it is different from contingent liability. Now here I have made one sentence. You just remember that or write down this sentence. You will, and that sentence will help you in finding out the in remembering the schedules. Okay, see, can Ramu Dhobi buy oranges? Can C for capital. Ramu R reserve and surplus. Dhobi D deposits. Buy borrowings. O other oranges. O other liabilities and provisions. Sentence is can Ramu Dhobi buy oranges. Now, on the basis of first alphabet of this sentence, you can easily remember the first 5 schedules which are coming under the under the head of capital and liabilities in the balance sheet of a banking company. Now, next for assets, I have another sentence. That sentence is CBI, a fraud organization. CBI, a fraud organization. The C for cash and balances with RBI. Then B, balances with banks and money at call and short notice. I, investments. A, advances. F, fixed assets. And O, other assets. CBI, a fraud organization. Uh, it is just a logic. Don't take it seriously. It is just a logic to remember all these schedules. Okay, now let's discuss in detail. Schedule number 1, capital. Now here you can see there are 3 types of bank as far as schedule number 1 is concerned. That is capital for nationalized bank, for banks incorporated outside India, and for other banks. Look, if the bank is nationalized bank, then you should ignore, if I mean to say, if you are preparing a balance sheet of a nationalized bank, then simply ignore Roman 2 and Roman 3 and consider only Roman 1. As per Roman 1, you are supposed to write here whatever amount contributed by central government in a bank. So if a bank is fully owned by central government, so whatever amount is contributed by central government as capital in the nationalized bank, you have to simply state that amount here and ignore Roman 2 and Roman 3 as you are preparing a balance sheet of a nationalized bank. So whatever amount you will write here, the same amount you are supposed to carry forward in the balance sheet next to schedule number 1 under the column of current year. Next to schedule number 1, that is carry capital under the column of current year. Now, next type of bank is for banks incorporated outside India. If you are preparing a balance sheet of a bank which is incorporated outside India, let's say you are preparing here a balance sheet of a bank which is incorporated in England. So in this situation, you have to simply ignore Roman 1 and ignore Roman 3. And as per the Roman 2, you are supposed to find out here capital of a bank. Now here you can see again there are 2 sub Romans. A small Roman is the amount brought in by banks by way of startup capital as prescribed by RBI should be shown under this head. जो भी RBI की गाइडलाइन के हिसाब से बैंक का जो भी स्टार्टअप कैपिटल होना चाहिए, विच बैंक्स विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो जो स्टार्टअप कैपिटल है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. नंबर 2 इज अमाउंट ऑफ डिपॉजिट केप्ट विद RBI अंडर सेक्शन 11 इन ब्रैकेट 2 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. तो जो भी अमाउंट है, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, जो भी RBI के पास रखना है इस बैंक को,
तो वो जो डिपॉजिट बैंक ने रखा है आरबीआई के पास एज पर दिस सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर सब रोमन 1 का और सब रोमन 2 का एडिशन करना है, और वट एवर द अमाउंट इज, आपको वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना है। हाँ, नेक्स्ट टू शेड्यूल नंबर 1 अंडर द फिगर, अंडर द कॉलम ऑफ करंट ईयर। Now, next is third type of bank is for other banks. If you are preparing a balance sheet of a bank which is not nationalized bank and which is not incorporated outside India, then for this bank you need to consider this type, this set for calculating its capital. First, you are supposed to mention here authorized capital, then mention issued capital, then mention called subscribed capital, and then mention called up capital. Now, from the value of called up capital, you are supposed to less the calls unpaid, and you are supposed to add their forfeited share. So see, I am repeating this one more time. You are supposed to mention here authorized capital, then issued capital, and then subscribed capital, and then called up capital. And from called up capital, deduct calls unpaid, and add their forfeited share. Now you have to consider third Roman when you are preparing a balance sheet of a bank which is not nationalized bank and which is not incorporated outside India. Now that's it, and whatever the total is, that whatever the amount is, whatever the amount will come here, you are supposed to carry forward that amount in balance sheet next to schedule number 1 capital and under the column of current year. Now schedule number 2 is important, reserve and surplus. Here you can see 5 important heads. The first is statutory reserve, second is capital reserve, third is securities premium reserve or share premium account, and the fourth is revenue and other reserves, and fifth one is balance in profit loss account. Now statutory reserve is something as per this reserve, and as per section 17 of Banking Regulation Act, all the banking companies incorporated in India should transfer 25% of its net profit to statutory reserve every year, and before declaring any dividend. So here you are supposed to first the opening balance, means previous year balance, then add their addition. If there are any deduction, then deduct that balance. Same treatment you are supposed to provide for capital reserve, securities premium reserve, and revenue and other reserves. And whatever the balancing figure is there of profit and loss account, you are supposed to copy and paste that figure here only, or you are supposed to transfer that figure from profit loss account to balance sheet, and you are supposed to write that figure next to balance in profit and loss account. I mean to say here in the column of current year under the schedule number 2, reserves and surplus. Now let's discuss, and after that you are supposed to make a total aggregate total of all these 5 items, and whatever total is that, you are supposed to carry forward that total in balance sheet next to reserves and surplus, that is schedule number 2, and in the column of current year. Now let's discuss in detail schedule number 3, deposits. Now here you can see there are two broad heads, A and B. Let's discuss the matter of A. See, deposits. Now what kind of deposit schemes are offered by a bank to a customer? See, there are 3 types of deposit scheme. The first is demand deposits, second is saving bank deposits, and the third is term deposits. Now you ask yourself, who can deposit their money in the bank? First, bank can deposit their money in other bank, and people like us or companies or businesses can deposit their money in the bank. So under demand deposits, you can see the deposit is made by the bank, and from others means what? Other than banks, whoever has made deposit in the bank, we are supposed to place that figure here if it is coming under the category of demand deposit. The second is saving bank deposit, and the third is term deposit. Actually, term deposit's tenure is long, and demand deposit tenure is generally small. Now, here you are supposed to make an aggregate total of Roman 1, Roman 2, and Roman 3, and you are supposed to place that total here. Now, B part is interesting. B part says that deposit of branches in India and deposit of branches outside India. Let's say I am giving you here few figures. Let's say total demand deposit is 5 lakh, total saving bank deposit is 5 lakh, and total term deposit is 5 lakh, and the total of Roman 1, Roman 2, and Roman 3 is 15 lakhs. Then you are supposed to write here 15 lakhs. Now here, out of that 15 lakhs, what is the amount of deposits accepted by Indian branches? You are supposed to mention that figure next to B1, that is deposit of branches in India. Let's say the Indian branches deposits is 12 lakhs. It means remaining 3 lakh are the deposits accepted by the foreign branches. It means whatever the total of A is here, you are supposed to bifurcate that total in B. So here A is going to definitely
mean A will be definitely equaling B. So A equals B. A equals B, and here, while mentioning the amount of deposits, you have to only specify the total of A. You have to only specify the total of A, means 1, 2, 3. Do not add A in B. Why? Because the A is classified in B. A is classified in B. A states the total deposits, and B part says out of that total deposits, the deposits accepted by Indian branches and deposit accepted by foreign branches. So A is classified into B, means I mean to say it is just bifurcated. So the total of A or the total of B, I mean to say the total of A, you are supposed to carry forward here in the format of Form A of balance sheet next to deposit. Schedule number 3 under the column of current year. Now let's discuss in detail next schedule, that is borrowings. See, Indian banks can borrow in India and they can borrow outside India. Now in India they can borrow from Reserve Bank of India. Indian banks can borrow from other banks, or Indian banks can borrow from other institutions and agencies. And at the same time, they can borrow outside India. So here we have to make a total of 1 and 2 to find out total borrowings of Indian branches by this schedule. And these are the important points of this schedule. And after that, here we are supposed to mention, let's say the bank has borrowed, let's say the 15 lakhs from these Indian institutions from in India, and bank has borrowed a sum of 5 lakhs from outside institution, means from the institutions which are outside of India. So 15 plus 5 is means it means the total borrowings of the banks are 20 lakhs. Here you will find, here you are supposed to write a figure of 20 lakhs and carry forward that figure of 20 lakhs in the balance sheet, that is Form A, and mention that figure in the column of current year next to schedule number 4, that is borrowings. I mean to say here you are supposed to write down here 20 lakhs rupees borrowings. Now this is important, footnote is important. As per the footnote, we have to mention here secured borrowings included in 1 and 2 above rupees. मतलब यहाँ पे हमें लिखना है कि out of that 20 lakhs ऐसा कितना borrowings है जो हमने लिया है और जिसके लिए हमने कुछ ना कुछ बैंक का मॉर्गेज किया है, मतलब बैंक का कुछ ना कुछ तो गिरवी रखा है और गिरवी रखे हमने बोरोविंग किया है, मतलब सिक्योर्ड बोरोविंग किया है, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है. Now schedule number 5 is other liabilities and provision. Let me give you one logic. See, पहला घर किसका है, कैपिटल का है. सेकंड घर किसका है, रिजर्व एंड सरप्लस का है. थर्ड किसका है, डिपॉजिट वाला है. फोर्थ किसका है, बोरोविंग्स वाला है. अगर कोई ऐसा लाइबिलिटी है जो कि हम शेड्यूल नंबर 1 में नहीं दिखा सकते, 2 में नहीं दिखा सकते, 3 में नहीं दिखा सकते, 4 में नहीं दिखा सकते, उसको हमें दिखाना है कौन से घर में, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, फिफ्थ वाला घर, क्योंकि उतना ही एक बचता है. इसका मतलब है जो अनाथ है, जो पहले 4 घर में नहीं रह सकता, जो अनाथ है उसको रखना है 5वें वाले घर में. 5वें वाले घर में, 5वां वाला घर मतलब फिफ्थ शेड्यूल किसका है, other liabilities and provision वाला है. Now let's discuss assets, the schedules of assets one by one. Now schedule number no, but before that let me tell you um, the liabilities which are going to be a part of other liabilities and provision. जो first है bills payable है, इसका पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट डिफाइन किया है व्हाट इज बिल्स पेबल. नेक्स्ट है इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट. अब ये एक यूनिक है, अगर ये अकाउंट अगर आपको आता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, अगर ये इसका बैलेंस अगर क्रेडिट है, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर ये क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, देन यू आर सपोज टू शो दैट फिगर हियर अंडर द हेड अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन. और जो नेक्स्ट है इंटरेस्ट एक्रूड है, और जो नेक्स्ट है अदर्स है इंक्लूडिंग प्रोविजन, जो भी प्रोविजन किया है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन रहेगा, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड रहेगा, वो आपको यहीं पे दिखाना है. ठीक है. नाउ शेड्यूल नंबर 6, लेट्स डिस्कस द फर्स्ट शेड्यूल अंडर द हेड अंडर द कैटेगरी ऑफ असेट्स, बट इट्स नंबर इज 6. शेड्यूल 6 कैश एंड बैलेंसेस विद आरबीआई. नाम में लिखा है कैश मतलब क्या, कैश इन हैंड कितना, खुद बैंक का खुद का कैश कितना है, उसके खुद के पास कितना कैश है इंक्लूडिंग फॉरेन करेंसी नोट्स. उसके बाद उसको दिखाना है कि उसका बैलेंस आरबीआई के पास कितना, उसका बैलेंस पड़ा है, मतलब आरबीआई के पास इस बैंक के कितने पैसे, वो हमें यहाँ पे दिखाना है इन करंट अकाउंट एंड इन अदर डिपॉजिट अकाउंट, और उसका टोटल करना है और वही टोटल आपको यहाँ पे दिखाना है बैलेंस शीट में. और नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 6 अंडर द कॉलम ऑफ करंट ईयर. ठीक है. अभी उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अपना शेड्यूल है 7 नंबर का, जो है बैलेंसेस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस. देखो
जो बैंक है अपने पैसे खुद के पास भी रख सकती है कैश इन हैंड, अपने पैसे आरबीआई के पास रख सकती है बैलेंसेस विद आरबीआई, और अपने पैसे बाकी बैंक्स के पास भी रख सकती है। मैंने महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र कैन कीप इट्स ओन मनी विथ इटसेल्फ with State Bank of with Reserve Bank of India, and at the same time it can keep its money with HDFC Bank or in State Bank of India रख सकती है। And at the same time bank can keep its amount in the different institution, either in the different Indian institution and in no, in non Indian institution, मतलब जो भी पैसा रखना है वो इंडिया में भी रख सकती है और आउटसाइड इंडिया भी रख सकती है। देखो अब इन इंडिया बैंक कैन कीप इट्स बैलेंस विद बैंक्स either in the current accounts or either in other deposit accounts offered by such a bank to our current bank, मतलब जिस बैंक का भी अपन बैलेंस शीट कर रहे हैं उस बैंक के दूसरे बैंक्स में पैसे हो सकते हैं जो भी उन्होंने करंट अकाउंट का की हमें सर्विस दे रहे हैं या फिर कोई भी और अदर डिपॉजिट अकाउंट है। नेक्स्ट है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस विद बैंक्स एंड विद अदर इंस्टीट्यूशन। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डिफाइन किया है कि मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस क्या होता है। आउटसाइड इंडिया, bank can keep its balance in outside India in the accounts, current accounts and in other deposit accounts and money at call and short notice। यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, A1 का और A2 का ग्रैंड टोटल करना है। मतलब पहले इनका सबका टोटल करो यहाँ पे दिखाओ, फिर इन सबका टोटल करो यहाँ पे दिखाओ, फिर इस ये टोटल और ये टोटल इनका ग्रैंड टोटल करके यहाँ पे दिखाओ, और यही ग्रैंड टोटल हमें बैलेंस शीट में दिखाना है। मतलब बैलेंस शीट में कौन सा टोटल जाएगा, ये इसका जो भी फिगर है, 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 इसका जो भी फिगर है और इसका जो भी फिगर है, इन सभी का हमें एडिशन करना है। और एडिशन करने के बाद जो भी एडेड फिगर है, जो भी फाइनल फिगर है वो जाएगा आपका बैलेंस शीट में नेक्स्ट टू शेड्यूल नंबर 7 इन द कॉलम ऑफ करंट ईयर। नेक्स्ट नाउ शेड्यूल नंबर 8 है इन्वेस्टमेंट। अब बैंक इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकता है, बैंक कैन इन्वेस्ट इट्स मनी आइदर इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी हियर टू हेड्स, इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया इन एंड इन्वेस्टमेंट्स आउटसाइड इंडिया इन। अब इंडिया के अंदर ये किस में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इंडिया के अंदर बैंक कैन इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, सब्सिडरीज एंड और जॉइंट वेंचर्स, अदर्स टू बी स्पेसिफाइड। इसका टोटल आएगा यहाँ पे। देन आउटसाइड इंडिया बैंक्स कैन इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग लोकल अथॉरिटीज, सब्सिडरीज एंड और जॉइंट वेंचर्स अब्रॉड, मतलब जो भी दूसरे देश की सब्सिडरीज है, मतलब बैंक की सब्सिडरीज है लेकिन दूसरे देश की है, और दूसरी कंपनी है लेकिन वो कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट है लेकिन वो दूसरे देश की कंपनी है। देन अदर इन्वेस्टमेंट टू बी स्पेसिफाइड, यहाँ पे भी हमें ग्रैंड टोटल करना है। ये पूरा 1 ये पूरा 2 का ग्रैंड टोटल करके इसको हमें दिखाना है इन बैलेंस शीट में। इन नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट्स and under the column of current year. Now schedule number 9 is important, let me tell you schedule number 9 is important, advances। अब एडवांसेस का मतलब क्या है, जो बैंक जो भी कर्जा देती है लोगों को या कंपनीज को या बिजनेसेस को, उसे हम एडवांसेस कहेंगे। मतलब बैंक क्या क्या देती है दूसरे लोगों को, लोन्स देती है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, सीसी कैश क्रेडिट देती है, ओवरड्राफ्ट देती है, बिल्स परचेस एंड डिस्काउंटेड होता है। ये सब कुछ ये जो भी है ना वो सारा का सारा एडवांसेस है, वो सारा का सारा एडवांसेस है। अभी एडवांसेस के अंदर देखो वी हैव हियर 3 हेड्स ए बी एंड सी। लेट्स डिस्कस ए पार्ट फर्स्ट। नाउ ए दिखाता है कि बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड, मतलब क्या, इस बैंक का बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड की मतलब अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ एडवांस बैंक ने कितना एडवांस दिया है, बैंक ने कितना लोन दिया है। चलो मान लो 5 लाख रुपए दिया है, मान लो, तो फिर यहाँ पे हम 5 लाख लिखेंगे, 5 लाख लिखेंगे। नेक्स्ट है कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट एंड लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड, जो भी लोन दिया है शॉर्ट टर्म, जो भी ओवरड्राफ्ट है, जो भी सीसी का अमाउंट दिया है बैंक ने एज अ लोन करके, उसको हमें यहाँ पे लिखना है। चलो मान लो वो भी 5 लाख है, और जो टर्म लोन है जो लॉन्ग टर्म के लिए दिया है वो भी चलो मान लो कि 5 लाख है। इसका मतलब क्या, इस बैंक ने टोटल इस बैंक का एडवांसेस कितना है, 15 लाख। इसका मतलब इस बैंक ने अप टू दिस डेट 15 लाख रुपए का कर्जा दिया है लोगों को दिया है, फिर बिजनेसेस को दिया है, या फिर डिफरेंट इंडस्ट्रीज को दिया है, या फिर किसी कंपनी को दिया है, और सारों का मिला के कितना दिया है, हम मानेंगे यहाँ पे 15 लाख रुपए दिया है। नाउ बी पार्ट इज डिफरेंट। नाउ ए पार्ट में हमें क्या क्या ए पार्ट क्या दिखाता है, ए पार्ट सिंपली स्टेट्स दैट or indicates the total amount of advances or total amount of credit offered by bank to their client through bills purchased and discounted, cash credit overdrafts and loans receivable on demand and term loans। मतलब जितना भी क्रेडिट लोगों को दिया है, क्रेडिट लोगों को देना मतलब कर्जा देना, जितना भी दिया है कौन से टाइप से दिया है वो सारा का सारा ए में मेंशन करने वाले हैं हम लोग। ना व्हाट इज बी, बी इज डिफरेंट।
बी इज सेइंग सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट, मतलब जो 15 लाख का कर्जा दिया है ना, वो 15 लाख कर्जे में से कितना सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट है। चलो मान लो कि 5 लाख टेंजिबल एसेट है, मतलब 5 लाख का कर्जा ऐसा दिया है बैंक ने, जिसमें बैंक ने कुछ तो कुछ ना कुछ मॉर्गेज लिया है, जिसको भी कर्जा दिया है उससे कुछ ना कुछ तो मॉर्गेज लिया है। सो इट इज नोन एज सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट, मतलब लैंड लिया होगा, घर लिया होगा, कुछ ना कुछ टेंजिबल एसेट लिया होगा उसका। नेक्स्ट है कवर्ड बाय बैंक और गवर्नमेंट गारंटीज, तो ऐसा भी कुछ कर्जा है जो बैंक ने गारंटी दिया है, दूसरे बैंक ने गारंटी दिया है, या फिर गवर्नमेंट ने गारंटी दिया है कि तुम इस बंदे को कर्जा दे दो, इस कंपनी को कर्जा दे दो, अगर ये कंपनी ने कर्जा नहीं दिया तो हम आपको वापस देंगे। तो ऐसा गारंटी, और चलो मान लो कि ये कवर्ड बाय बैंक और गवर्नमेंट गारंटीज का कर्जा, चलो मान लो कि 7 लाख है, मतलब 5 + 7 12 लाख हो गया। टोटल कर्जा 15 लाख का दिया है, वो 15 लाख में से 12 लाख तो ये फर्स्ट वाले सेकंड वाले ने कवर कर लिया है, यानी कि अनसिक्योर्ड कितना है 3 लाख। मतलब 3 लाख रुपए का ऐसा कर्जा है जिसके ऊपर बैंक ने ना ही कोई मॉर्गेज लिया है, और ना ही कोई किसी को, ना ही बैंक को किसी ने गारंटी दिया है, वो अनसिक्योर्ड है। इसका मतलब क्या, जो ए है वो क्लासिफाई करना है आपको बी के अंदर, जो ए है आपको वो क्लासिफाई करना है बी के अंदर। ए में क्या दिखाया है आप लोगों को कि कौन से टाइप से कर्जा दिया है, बी में दिखाया कर्जा कैसे दिया है, कर्जा कैसे दिया है, मतलब सिक्योरिटी लेके दिया है, या फिर गारंटी लेके दिया है, या फिर सिक्योरिटी भी नहीं और गारंटी भी नहीं, अनसिक्योर्ड है, ऐसा दिया है। That will be shown in B part of the schedule number 9 advances. Now C is important. Now C is divided in two part, 1 and 2. ना आप कर्जा कहाँ-कहाँ पे दे सकती है बैंक, बट ऑब्वियस है इंडिया के अंदर भी कर्जा दे सकती है और इंडिया के बाहर भी कर्जा दे सकती है। तो यहाँ पे ये दिखाया है कि इंडिया एडवांसेस इन इंडिया एंड एडवांसेस आउटसाइड इंडिया। हाँ, आई विल रिपीट अगेन, ए में क्या दिखाया है, कर्जा कैसे दिया, सॉरी, कर्जा कौन से टाइप से दिया, फिर कर्जा कैसे दिया, और सी में क्या दिखाया है, कर्जा कहाँ पे दिया, कर्जा इंडिया में दिया और कर्जा इंडिया के बाहर भी दिया। तो इंडिया में किसको कौन से सीक्वेंस में देना पड़ता है, प्रायोरिटी सेक्टर, हर एक बैंक का प्रायोरिटी सेक्टर रहता है। आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ आईडीबीआई। सी, आईडीबीआई इज बेसिकली अ बैंक which offers credit to industry. NABARD is a bank who offers credit to farmers. So for NABARD priority sector is farm, एंड फॉर आईडीबीआई प्रायोरिटी सेक्टर इज इंडस्ट्री। सो उस सीक्वेंस के हिसाब से हमें देखना है कि इंडिया में कितना दिया। चलो मान लो कि 15 लाख में से इंडिया में 14 लाख का कर्जा दिया है, तो 14 लाख में से प्रायोरिटी सेक्टर को कितना दिया है, पब्लिक सेक्टर को कितना दिया है, दूसरे बैंक को कितना कर्जा दिया है, और उसके भी अलावा दूसरे लोगों को कितना कर्जा दिया है, वो हमें यहाँ पे दिखाना है C1 में। और अगर 15 में से 12 लाख इंडिया में दिया है, इसका मतलब बचा हुआ 3 लाख गारंटेड आउटसाइड इंडिया है। तो ये 3 लाख में दूसरे बैंकों को कितना दिया है जो पर दूसरे कंट्रीज की है, अदर्स को कितना दिया है, और अदर्स को फिर से डिवाइड किया है 3 में, बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड सिंडिकेटेड लोन्स एंड अदर्स। आई विल रिपीट वन मोर टाइम, आई एम टेलिंग यू, लिसन टू मी केयरफुली। ए टेल्स यू, it tells you the ways by which advances are made by a bank, मतलब credit facilities offered by a bank, the ways, the kinds. B states how these credit offered by a bank to its customer may without with security or with guarantee and without security and guarantee, and where advances are made by the bank, कहाँ पे कितना दिया है बैंक ने, वो हमें दिखाता है C1 एंड C2 में। मतलब यू आर सपोज टू क्लासीफाई ए इंटू बी एंड बी इंटू सी। अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी ग्रैंड टोटल करना है ओनली C1 और C2 का, मतलब C1 और C2 का जो भी आंसर रहेगा दैट इज गोइंग टू मैच योर बी फिगर, एंड योर बी फिगर इज गोइंग टू मैच योर ए फिगर। मतलब आपको खाली ए का टोटल करना है, या फिर ए का टोटल करो, या फिर खाली बी का टोटल करो, या फिर खाली सी का टोटल करो। योर ए शुड इक्वल टू बी एंड बी शुड इक्वल टू सी, और जो C1 एंड C2 है, या फिर बी का टोटल है, या फिर ए का टोटल है, वो आपको लेना है यहाँ पे बैलेंस शीट में, नेक्स्ट टू शेड्यूल नंबर ए 9 एडवांसेस इन द कॉलम ऑफ करंट ईयर, इन द कॉलम ऑफ करंट ईयर यहाँ पे आएगा वो फिगर। ओके, नाउ लेट डिस्कस शेड्यूल नंबर 10 in detail. Now schedule number 10 is fixed asset. Now see, we can imagine only two types of fixed asset with the bank. That is its premise, its building, and its furniture and fixture. So here we are supposed to mention their opening balance first. Then if there is any addition or any purchase of a new building, then we are supposed to add that amount here. And deduction during the year, whatever, if we have sold, means the bank has sold, if bank has sold any building, then we are supposed to deduct that amount from this figure.
and whatever depreciation is charged, we at whatever rate as per whatever method is there, we are supposed to provide depreciation. We are supposed to deduct the depreciation from the amount of premises, and same accounting treatment we are supposed to follow in case of other fixed asset, including furniture and fixture. Now schedule number 11, other asset. Let me get you one more time at the format of balance sheet. Now look here, जो भी asset हो, कोई भी asset अगर वो 6 में हम नहीं रख सकते, 7 में हम उसको नहीं बिठा सकते, 8 में भी हम उसको शो नहीं कर सकते, 9 में भी नहीं कर सकते, 10th में भी नहीं कर सकते, तो उसका घर क्या है, ऑथर एसेट। मतलब अगर मैं ऐसे बच्चे की बात करूँ, एक ऐसे एसेट की बात करूँ जो अनाथ है, अगर वो अनाथ है तो उसका घर है ऑथर एसेट, शेड्यूल नंबर 11। क्यों? क्योंकि वो 6 में नहीं आ सकता, 7 में नहीं आ सकता, 8 में नहीं आ सकता, 9 में नहीं आ सकता, 10 में नहीं आ सकता। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, स्टेशनरी है, स्टेशनरी को पकड़ लो आप, स्टेशनरी क्या आप 6 में दिखा सकते हो, क्या 7 में दिखा सकते हो, क्या 8 में दिखा सकते हो, 9 में दिखा सकते हो, 10 में दिखा सकते हो, तो कहाँ पे दिखाओगे, ऑथर एसेट में ही आपको दिखाना पड़ेगा। नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल शेड्यूल नंबर 11, ऑथर एसेट। ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे क्या आया, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट नेट, मैंने आपको बोला था एक टिपिकल आइटम है, अगर इसका डेबिट बैलेंस आएगा क्लोजिंग के टाइम पे या अकाउंट के क्लोजिंग के टाइम पे अगर डेबिट बैलेंस आएगा तो ये यहाँ पे आएगा, अगर क्रेडिट बैलेंस आएगा तो शेड्यूल नंबर 5 में जाएगा, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में जाएगा। Number 2 है interest accrued. Number 3 है tax paid in advance or tax deducted at source. Next है stationery and stamps. Next है non banking asset acquired in satisfaction of claim. अब non banking asset क्या होता है, मैं सेकंड वीडियो मैंने जो इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसके अंदर मैंने बताया है कि what is non banking asset. और finally you are supposed to show here any unadjusted balance of loss and the same may be shown under this item विथ एप्रोप्रिएट फुटनोट। अगर कोई अनएडजस्टेड बैलेंस ऑफ लॉस है तो वो आपको यहाँ पे दिखाना है 11 में। अब शेड्यूल नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज है। इसके अंदर कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज है, कौन से टाइप की कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी हो सकती है, claims against the bank but not acknowledged as debt, liability for partially paid investment, liability on account of outstanding forward exchange contracts, guarantees given on behalf of constituents in India, outside India, and acceptances, endorsements and other obligations and other items for which the bank is contingently liable. Let me tell you one more important thing, क्लोजिंग के टाइम पे जब आप बैलेंस शीट को क्लोज करोगे उस टाइम पे आपको फर्स्ट पहले 5 शेड्यूल की टोटल करनी है, फ्रॉम 1 2 3 4 5 की टोटल करनी है, और वो टोटल दिस टोटल शुड मैच विद द टोटल ऑफ शेड्यूल्स 6 7 8 9 10 11। आपको 12 को कंसिडर ही करना नहीं है, जब आप मैच करोगे ना लाइबिलिटीज विद द एसेट, डू नॉट कंसिडर द कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज, डू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द फिगर ऑफ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज। एंड ये बिल्स फॉर कलेक्शन तो अलग ही आइटम है, वो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी के नीचे दिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, इट इज शोन हियर जस्ट एज अ फुटनोट and it is different from contingent liability, and I have explained this concept in the earlier video, so that you please watch that earlier video. uh, Now let's discuss in detail how to prepare the profit loss statement, profit loss account. See, इसका जो format है that has been described, actually form B that has been described in third schedule, that is form B of the banking regulation at 1949. अब इस form में भी we are supposed to mention summary in the profit loss account and details we are supposed to give in the schedules, and Reserve Bank of India, has given guidelines for the preparation of profit loss account as well as the balance sheet. And now let's discuss now the format of profit loss account. Now this is the form B, this is the form B of profit loss account. Now here you can see there are 4 parts. Let me here you can see there are 4 parts. Part 1, segment 1 income, segment 2 expenditure, segment 3 profit loss, and segment 4 appropriation. Now under income there are 2 schedules, 13 and 14. 13 is interest earned, 14 is other income. So see, जब भी कोई बैंक का लोगों को कर्जा देती है या फिर किसी दूसरे बैंक में इन्वेस्टमेंट करती है या फिर आरबीआई के पास पैसे रखती है, तब उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। मतलब बैंक जब भी कर्जा देती है तो बैंक कर्जे के ऊपर बैंक को इंटरेस्ट तो मिलता ही है। जब बैंक दूसरे बैंक में डिपॉजिट्स करती है अपना पैसा तो उस टाइम पे भी उसको पैसे में इंटरेस्ट मिलता है। अगर बैंक ने आरबीआई के पास पैसे रखे हैं तो उसके ऊपर भी बैंक को पैसे में इंटरेस्ट मिलता है। अगर बैंक ने किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है और वहां से अगर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो सारा का सारा इनकम है बैंक का, और दैट इंटरेस्ट वी शुड कंसिडर इन शेड्यूल नंबर 13। इसका मतलब क्या है, अगर बैंक का इनकम है लेकिन अदर देन इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के कारण बैंक को इनकम नहीं हुआ, किसी दूसरे सोर्स से बैंक को इनकम हुआ है, चलो मान लो कि कमीशन मिला है, डिविडेंड मिला है, ब्रोकरेज मिला है,
तो वो जो सारा का सारा इनकम है ना वो 14 में आएगा। इसका मतलब 13 के अंदर हमें क्या दिखाना है, वो सारा का सारा इंटरेस्ट जो बैंक को मिल रहा है, और इंटरेस्ट के अलावा जो भी इनकम है, इंटरेस्ट के अलावा जो भी इनकम है, सो एनी इनकम अदर देन इंटरेस्ट वी आर सपोज टू मेंशन इन शेड्यूल नंबर 14, दैट इज अदर इनकम, और उसका टोटल यहाँ पे आएगा। हाँ, एट द सेम टाइम एक्सपेंडिचर, शेड्यूल नंबर 15 एंड 16, इसके भी दो ही शेड्यूल है। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड मतलब क्या, इंटरेस्ट पेड। अब बैंक इंटरेस्ट कब पेड करता है, सी बैंक इंटरेस्ट कब पेड करता है, अगर बैंक ने कुछ बोरो किया है दूसरे बैंक से या तो फिर आरबीआई से, और जो हम हमारे जैसे लोग हैं जो बैंक में डिपॉजिट्स रखते हैं, उसके ऊपर भी बैंक को इंटरेस्ट दे, बैंक हमें इंटरेस्ट देती है, इसका मतलब बैंक इंटरेस्ट पे करती है। तो इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है ना वो सारे के सारे 15 के अंदर आएंगे, सारे के सारे 15 के अंदर आएंगे। और इंटरेस्ट पेमेंट को छोड़ के जो भी सारे एक्सपेंसेस है ऑल विल बी कवर्ड अंडर शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मान लो कि सैलरी है लोगों का, एम्प्लॉयज लोगों का सैलरी है, तो सैलरी तो इंटरेस्ट नहीं है, वो तो 16 में आएगा। मतलब 15 के अंदर खाली आपको कंसिडर करना है कि इंटरेस्ट कितना पेड हुआ है और किस किस को पेड किया है। तो वो जिस जिसको पेड किया है, जिस जिस कारण से पेड किया है, यू आर सपोज टू मेंशन दैट फिगर इन शेड्यूल नंबर 15, और उसके अलावा सारे के सारे आपको शेड्यूल नंबर 16 में कंसिडर करने हैं। अब ये इंटरेस्टिंग है, प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसी जो पुराने हेड में नहीं था, पुराने फॉर्मेट में नहीं था, अब इस फॉर्मेट में आया है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको कंसिडर करना है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और इसको शेड्यूल नंबर नहीं है, इसको शेड्यूल नंबर नहीं है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, बट इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, बट इट हैज नो शेड्यूल नंबर, इसका खुद का शेड्यूल नंबर नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, इनकम का टोटल 13 14 का टोटल यहाँ पे आएगा, 15 16 एंड प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज का टोटल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और फिर इनकम में से, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर अगर आपने माइनस कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, उसका टोटल, उसका बैलेंस यहाँ पे आएगा। यहाँ पे एक चीज मिस हो गई है, यहाँ पे वन एक और चीज होती है, प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, मतलब लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, वो भी बैलेंस यहाँ पे आता है। मतलब पहले करंट ईयर का प्रॉफिट दिखेगा, फिर लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिखेगा, लास्ट ईयर का कितना प्रॉफिट, लास्ट ईयर्स के कितने प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड हुए हैं वो यहाँ पे आएगा, और दोनों का टोटल यहाँ पे आएगा, टोटल के कॉलम में आएगा। अभी नेक्स्ट है एप्रोप्रिएशन। अब एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व में, आपको मालूम है जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट है, मतलब प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट नहीं, खाली करंट ईयर का, कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, करंट ईयर के प्रॉफिट में प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ऐड करते हैं, और उस टोटल के ऊपर से स्टैट्यूटरी रिजर्व मींस टोटल के हिसाब से स्टैट्यूटरी रिजर्व को अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। ऐसा नहीं करना है, जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट है you are supposed to forward 25% of current year profit as per section 17 of banking regulation act 1949 to this statutory reserve, टू दी स्टैट्यूटरी रिजर्व। उसके बाद आपको अदर रिजर्व को भी ट्रांसफर अगर करना है कुछ तो वो करो। उसके बाद अगर गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना है पैसा, अगर नेशनलाइज बैंक है तो गवर्नमेंट को जाएगा, या फिर अगर पब्लिक बैंक है तो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, तो कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो यहाँ पे आएगा। और फाइनली जो भी बचा है पैसा वो बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट शेड्यूल नंबर 2 में जाएगा। हाँ, मैं आपको एक यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। चलो मान लो कि करंट ईयर का प्रॉफिट है 4000 रुपए, और प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट है 2000 जो कि ब्रॉड फॉरवर्ड हुए हैं। इसका मतलब अप टू दिस फाइनेंशियल ईयर इस कंपनी ने टोटल कितना कमाया, 6000 रुपया कमाया, तो इधर 6000 का फिगर आएगा। अभी यहाँ पे यू आर सपोज टू ट्रांसफर 25% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट 4000 है, मतलब ये 4000 का 1000 आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है रिजर्व, टोटल यहाँ पे 6000 है, तो यही 6000 का टोटल आपको यहाँ पे भी लिख देना है। ये जो टोटल का कॉलम दिखाई दे रहा है ना, फोर का टोटल, मुझे फोर्थ अप्रोप्रिएशन का टोटल यहाँ पे 6000 लिखो, यहाँ पे भी 6000 है, लेकिन ट्रांसफर करते समय सैटरडे रिजर्व को 1000 ट्रांसफर करना है, विच इज 25% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, एंड करंट ईयर प्रॉफिट इज 4000, तो यहाँ पे 1000 आएगा, और बाकी कुछ नहीं, सेकेंड साइलेंट है, थर्ड साइलेंट है, तो बाकी जो 5000 बचा है, मतलब 6000 माइनस 1000, जो 5000 बचा है वो 5000 कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा एज अ बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट। अभी यहाँ पे नोट्स दिए हैं 3, दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट। फर्स्ट इज द टोटल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ फॉरेन ब्रांचेस, मतलब ये जो टोटल इनकम है ना, इस टोटल इनकम में फॉरेन ब्रांच का कितना इनकम है वो दिखाना यहाँ पे। देन टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑफ फॉरेन ब्रांचेस, मतलब ये जो टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर होगा ना, इस टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर में फॉरेन ब्रांचेस का कितना एक्सपेंडिचर है, यू आर सपोज टू मेंशन दैट फिगर हियर। और उसके बाद अब आपको पता चलेगा कि फॉरेन ब्रांच का इनकम कितना है, फॉरेन ब्रांच का एक्सपेंडिचर कितना है, तो खाली फॉरेन ब्रांच के इनकम से फॉरेन ब्रांच के एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो, आपको एक तो सरप्लस आएगा या फिर डेफिसिट आएगा ऑफ फॉरेन ब्रांचेस। अगर इनकम ज्यादा है फॉरेन ब्रांच का तो सरप्लस आएगा, अगर फॉरेन ब्रांच का एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डेफिसिट होगा।
Now let's discuss in detail these schedules one by one. शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न, मैंने आपको पहले ही बोला है, बैंक को जो भी इंटरेस्ट मिलता है, कैसे भी मिलने दो, जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो सारा का सारा इंटरेस्ट आपको शेड्यूल नंबर 13 में दिखाना है। क्या क्या दिखाएगा देखो, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, जो भी कर्जा दिया है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो वहां पे लिखा नहीं, यहाँ पे आना आएगा। मतलब लोन दिया उसका इतना इंटरेस्ट है, कैश क्रेडिट का ऑफर किया उसका इंटरेस्ट है, ओवरड्राफ्ट के इतना इंटरेस्ट मिला, और जितने भी बिल्स डिस्काउंट किए, जितने भी बिल्स डिस्काउंट किए, अब बिल डिस्काउंटेड भी एक एडवांस ही है, बिल डिस्काउंटेड एंड बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड, दैट इज आल्सो एडवांस। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला लोन के ऊपर और कितने रुपए के बिल डिस्काउंट, बट बिल डिस्काउंट करके कितना डिस्काउंट पैसे मिले, यू आर सपोज टू मेंशन दैट फिगर हियर। नेक्स्ट इज इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है तो भी यही पे आएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विद आरबीआई एंड अदर इंटर बैंक फंड्स। अगर आपने कोई, अगर बैंक ने किसी और बैंक में डिपॉजिट्स किए हैं पैसे, मतलब डिपॉजिट रखे हैं पैसे, या तो आरबीआई होगी या फिर कोई और बैंक होगी, तो उस डिपॉजिट से भी जो भी पैसा इंटरेस्ट मिलेगा वो यही पे आएगा। एंड फाइनली अदर्स। नाउ शेड्यूल नंबर 14 अदर इनकम, मैंने आपको बोला इंटरेस्ट के अलावा जो भी इनकम होगा बैंक का वो सारा का सारा इनकम 14 के अंदर आएगा। देखो यहाँ पे कमीशन है, एक्सचेंज है, ब्रोकरेज है। अगर बैंक ने इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया और उसके ऊपर प्रॉफिट मिला तो वही पे दिखाना है। अगर बैंक ने इन्वेस्टमेंट सेल किया अगर उसके ऊपर लॉस हुआ तो वो यहाँ से माइनस करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट है, चलो मान लो कि उसका आज का वैल्यू है 5,000, हाँ सो आज का वैल्यू है 5,000, जब लेकिन जब हमने इन्वेस्टमेंट किया था तब का वैल्यू था 3,000, आज का वैल्यू 5,000 यानी 2,000 बढ़े, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाँ तो ये यहाँ पे आएगा 2,000। अगर वाइस वर्सा है, मतलब जब इन्वेस्ट किए तब 5,000 थे, आज वैल्यू है 3,000, मतलब लॉस हुआ, तो रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है तो लॉस यहाँ से माइनस करेंगे अपन। सेम केस फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग एंड अदर एसेट, in case of profit add here, in case of loss deduct here. Same case in case of profit on exchange transaction, in case of profit add here, in case of loss deduct here. Income earned by way of dividend etc from subsidiaries or companies and or joint ventures abroad or in India, जो भी डिविडेंड मिला है इंडियन कंपनीज से या फिर इंडियन सब्सिडरीज से या फिर अब्रॉड कंपनीज से या फिर अब्रॉड सब्सिडरीज से, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और इसके अलावा बाकी के इनकम एज ए मिसलेनियस इनकम आएंगे। जो भी लॉस का फिगर आएगा ना, please mention that figure in the schedule in the bracket. Now schedule number 15 is interest expended, मतलब बैंक जो भी इंटरेस्ट पेड करेगी ना, यू आर सपोज टू मेंशन ऑल दोज पेड अमाउंट हियर ओनली अंडर द हेडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। अब बैंक कब कब इंटरेस्ट पेड करती है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट के ऊपर बैंक से इंटरेस्ट पेड करती है, या फिर मुझे इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ता है, एज देना पड़ता दिया है या फिर देना पड़ेगा, तो वो जो है इंटरेस्ट दैट इज योर एक्सपेंस। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंटर बैंक बोरोइंग, अगर बैंक ने बोरो किया है पैसा आरबीआई से या फिर अदर बैंक से और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा दैट विल कम हियर अंडर द शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। एंड फाइनली अदर्स। नाउ शेड्यूल नंबर 16, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 16 लेट मी टेल यू क्या करना है। जो भी बैंक के एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट, all these expenses we are supposed to mention here under schedule number 16 operating expenses. Now here we can see there are 12 items. Now from first P, payment to and provision for employees, next is rent, taxes and lighting, next is printing and stationery, and advertisement and publicity, depreciation on bank's property, director fees, allowances and expenses, auditor fees and expenses including branch auditors, law charges, postage, telegram, telephones, etc., repairs, maintenance, insurance and other expenditure. So we are done with the schedules, but let me tell you here, in the exam you have to prepare the format of balance sheet and format of profit loss account as per form A and form B, and without any shortcut. But there is no need to prepare all these schedules in detail, all these schedules in detail. So you can do one thing, when you will receive your answer sheet, you start to prepare, means you start to prepare this format form A and form B and leave some lines for every schedules. For first schedule leave at least 5 to 6 lines as per the nature of schedule. You are supposed to leave the lines. There is no need to prepare these schedules as it is, but you are supposed to prepare the form A of balance sheet and form B of profit loss account properly. Thank you.